Okay, fine, students. Now, the most important thing that we need to understand over here is that, over the last 1 or 2 days, I have been teaching, how to write an effective essay. Now, uh, the most important thing is that to score in an essay is a very Herculean task. It is very daunting, I mean, very difficult to get a high score in essay. So it is very, very important that you follow a particular format in an essay, and I'm sure that with the practice you'll be able to understand everything. Yeah, I'll be a bit louder. Yeah, yeah, yeah. So the most important thing is, it fine, everybody? Okay. So the most important thing that I would like to tell you is that whenever you write an essay, whenever you are writing an essay, it is very, very important that uh, you go through a particular format. Now I'm just stretching this in front of you so that you could properly understand. We have discussed before. I have already taken a lecture on introduction. I have already taken a lecture on how to write an effective paragraph, and last lecture was how to write an effective conclusion. But even if you have missed these lectures, this lecture is basically a summary of what we have done. So if you are able to, अगर आपके पास आपने ये पहले lectures एक आध दो lecture मेरे attend नहीं किए हैं, everybody is relatively a new student, then also you'll be able to understand this very effectively. Now, very important for you to understand that I have always told you that introduction should be. This is what you need to. You can copy down this in your notebook. Introduction should always be of 60 words. Now it is not necessary that introduction should only be of 60 words. You may write introduction between 45 to 65 words, but not you should not be writing more than those many words. I told you that introduction में 3 lines होनी चाहिए. The first is going to be paraphrasing the task. In the second line, you are going to give your opinion. Which is going to be the thesis statement, and last is going to be essay overview. So this is how you write an entire uh, introduction. So the first is going to be paraphrasing the task, second is stating the opinion, आपका क्या मंतव्य है, and last but not the least is you are giving an overview of the essay. Now it is very, very important to understand that ये तीन जो है वो आपको अभी मैं will understand this practically when I'll take the essay, but you need to understand this कि पहले introduction में 3 lines होनी चाहिए. Now supporting paragraph should be of 4 lines. The first line is going to be uh, the आपका पोजीशन देना है. You need to give your position. फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है why you are having this position. आप हो सकता है तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, एंड यू कैन समराइज. नाउ ये जो चौथी लाइन है, दिस इज नॉट कंपल्सरी. यू मे और यू मे नॉट राइट. When I taught you how to write a paragraph, then I told you that you need to write at least this 3 first lines. ये 3 लाइन तो लिखनी ही है. Summary of the paragraph is something, it is your prerogative. आपके मन पे है, आपकी उस पे है. It is not compulsory to write a summary of the paragraph. कोई भी पैराग्राफ होगा, दूसरा पैराग्राफ लिखोगे, then also it should start with the same logic as we started paragraph 1. The first one is you are stating your position. Explain करोगे क्यों ये आपने किया. You are going to give an example, and then you may summarize. And finally, in the last lecture, I told you that in conclusion, you should be writing not more than 2 lines. You may write only 1 line if you are very good, but if you're not able to write conclusion in 1 line, then you should at least, I mean, you should write 2 lines, but not more than 2 lines. So technically, if you see, if you understand this properly, अगर इसको ठीक से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने 13 लाइन, 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब ये पैराग्राफ में 4 4 लाइन. So 8 lines, 3 lines in introduction comes out to be 11, and 2 lines in conclusion. So I have completed the entire essay of 250 words in 13 lines only. Uh, if you require more lines to be written, you may go for writing 15 lines. So you may write 5 lines in this. लेकिन एक गुरु चाबी आपको याद रखनी है कि किसी भी हिसाब से इंट्रोडक्शन में 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखनी है. And in conclusion, you should not be writing more than 2 lines. So if you want to increase the number of lines, दो तरीके हैं. You may increase lines in
पैराग्राफ, आप पैराग्राफ में 4 के बदले 5 लाइन लिख सकते हो। और यू मे ऑल्सो राइट 3 बॉडी पैराग्राफ्स, जैसे कि इस केस में 1 and 2, देयर आर 2 बॉडी पैराग्राफ्स, यू मे ऑल्सो राइट 3 बॉडी पैराग्राफ्स। सो 3 बॉडी पैराग्राफ लिखोगे तो 4 लाइन, तो 17 लाइन हो जाएगी। तो दैट इज फाइन अगर 3 बॉडी पैराग्राफ लिखते हो। तो ऐसे केस में अगर मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप 3 बॉडी पैराग्राफ लिखते हो तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस समरी वाला पार्ट। सो अगर नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 लाइन इसके, 3 और वापिस एक तीसरा पैराग्राफ आता है उसके 3 लाइन, 9 लाइन, और ये 3 10 12 लाइन, और ये 2 14-15 लाइन ही होंगे। एन आइडियल ऐसे शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 13 to 15 लाइन्स। सो उसके लिए आपको और ये भी याद रखना है कि यू नीड टू राइट 250 मिनिमम वर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टुडे, बट आई थॉट ऑफ हैविंग दिस रिवीजन। पहले मैंने सोचा कि एक बार रिवीजन कर दूं, ये करने के बाद यू विल बी एबल टू राइट एन essay वेरी इफेक्टिवली। Understood? So this is how you are going to write the this is the entire framework of any IELTS essay. इंट्रोडक्शन 3 लाइंस, यू शुड बी राइटिंग 45 to 65 वर्ड्स। यहाँ पे 60 वर्ड्स लिखा है लेकिन आपके जहन में याद रख लो 45 to 65 वर्ड्स। सपोर्टिंग पैराग्राफ शुड बी ऑफ 85 to 90 वर्ड्स। Again, any supporting paragraph is going to be of 85 to 90 words, and conclusion should be of 40 to 45 words. ये आप बांध के रख लो, because this is going to be implemented in each and every possible essay that you are going to write. अब now let us try to understand this, how this has been written, इसका इस्तेमाल practically कैसे हुआ है. So let us try to understand this. जैसे कि okay, now let us try to understand this topic. I am reading this topic in front of you. Government investment in the visual arts, the kind you commonly see in art galleries, is a waste of money. Governments must invest this money in public services instead. To what extent do you agree or disagree with this statement? So this essay is about कौन से type का essay? To what extent do you agree or disagree? I am trying to explain you in such a way any person without having any knowledge of English will be able to understand this. बिल्कुल positive attitude से सुनने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. Now the most important thing, government investment. I'm coming up with this essay once again. Government investment in the visual arts. Visual arts मतलब आर्ट गैलरी होती है जिसमें फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स की गैलरी होती है, किसने स्कल्पचर्स बनाए हैं उसकी गैलरीज होती है, उसको आप आर्ट गैलरीज कहेंगे। ऐसे ये कहता है कि गवर्नमेंट अगर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करती है तो वो पैसे का व्यय है, मतलब इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। इट इज वेरी वेरी क्लियरली रिटन। सी दिस इज, आपने इसको एग्री करना नहीं एग्री करना वो बात की बात है, इसके लिए तो ये पूरा स्टेटमेंट है ही। यू आर बीइंग आस्क्ड वेदर यू एग्री और डिसएग्री। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक। टॉपिक ये कहता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करती है such as paintings exhibition, sculptures exhibition, is a wastage of money. इसके बदले गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट दिस मनी इन पब्लिक सर्विसेज इंस्टेड। इंस्टेड मतलब इसके बदले में गवर्नमेंट को अपना सारा पैसा जो है पब्लिक सर्विसेज में डालना चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक सर्विसेज, इसका मतलब ये हुआ रोड्स, सैनिटेशन आ जाता है इसमें। यू कैन टॉक अबाउट ब्रिजेस, आपके वहां पे जो अहमदाबाद में फ्लाईओवर्स बने हैं, फ्लाईओवर्स इन एनी सिटी, this is what we call as public services. It also includes public transportation services, education भी आ जाता है, hospitals भी आ जाता है, उसको public services कहेंगे। इस बात से आप किस हद तक सहमत हो? To what extent do you agree or disagree with this statement? So I repeat the entire essay. गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है आर्ट गैलरीज में, वो बिल्कुल पैसों का वेस्टेज है। उसके बदले गवर्नमेंट को सारे पैसे पब्लिक सर्विसेज में डालने चाहिए। आप इससे सहमत हो के नहीं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ गुड ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लैरिटी हो। सो आई एम नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन यू इसको कैसे लिखा जाए। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम जस्ट ये इसको एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। ओके, सो ऐसे का टॉपिक है, लेट मी रिकॉल व्हाट वी लर्नड। हमने ये लर्न किया था कि इंट्रोडक्शन में 3 लाइन लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ्स में आपको 4 लाइन लिखनी है, जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स है दैट मेनी नंबर ऑफ लाइंस यू आर गोइंग टू राइट, एंड फाइनली इन कंक्लूजन यू आर गोइंग टू राइट 3 लाइंस, 2 लाइंस, सॉरी,
you need to write only 2 lines, not more than 2 lines. Now see what I have done. ये मैं introduction लिख रहा हूँ. So what I have done is in introduction, पहला sentence. तो पहला sentence क्या होगा? I am paraphrasing. ये जो पूरा जो ऐसे है उसको उसको मैं पैराफ्रेज करता हूँ. पैराफ्रेज की मतलब होता है कि I'm restating the entire essay but in different words. इसको मैं कॉपी नहीं करूंगा. तो मैंने देखो क्या किया है. I am reading. Paraphrase the task question or write a general statement relating to the topic using synonyms of the keywords used in the question. तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो चीज लिखी है, I am trying to write these words in different, write this statement in different words. So what I am doing is, these days, many local governments spend large portions of their budget not only on public services but also on the visual arts. अब देखिए इसका इस ऐसे का टॉपिक ये कहता है कि गवर्नमेंट व्हेन आई एम सेइंग दैट गवर्नमेंट जो पैसे इस खर्च करती है विजुअल आर्ट्स पे, वो वेस्टेज ऑफ मनी है. इसका मतलब ये हुआ कि विजुअल आर्ट्स पे खर्च करती है, तभी जाके मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना कि वो वेस्टेज ऑफ मनी है. तो गवर्नमेंट को वो पैसे सारे पब्लिक सर्विसेज पे डालने चाहिए. तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो डालती है पैसे, वो पब्लिक सर्विसेज पे भी डालती है और विजुअल आर्ट्स पे भी डालती है. बट ये ऐसे ये कहता है कि उसको बगैर बजाय कि विजुअल आर्ट्स पे डालना, बेहतर ये होगा कि उसको पब्लिक सर्विसेज पे डालना चाहिए. तो यही हमने पैराफ्रेजिंग करके लिखा है ओवर हियर. दिस डेज many local governments spend large portions of their budget not only on public services but also on the visual arts. अब दूसरा स्टेटमेंट जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर थीसिस स्टेटमेंट. सो इन थीसिस स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू राइट योर ओपिनियन. आप इससे सहमत हो, कितने हद तक सहमत हो, उसके बारे में लिखोगे. सो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन. तो लिखा है, although I agree that it is important to invest in local amenities, I do not think spending on the visual arts is a waste of money. इसका मतलब ये हुआ कि भले मैं ये सहमत हूं कि हमें लोकल एम्यूनिटीज मतलब के पब्लिक सर्विसेज पे स्पेंड करने चाहिए, लेकिन मैं इस बात से असहमत हूं, आई डू नॉट एग्री कि विजुअल आर्ट्स पे पैसा स्पेंड करना वो वेस्टेज है. तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्दो पब्लिक सर्विसेज पे स्पेंड करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि विजुअल आर्ट्स पे पैसा खर्च करना इज अ वेस्टेज. Now what I have done is मैंने थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग किया. I cannot copy the same words. So what I did, जैसे कि यहाँ पे लिखा है public services, देखिए यहाँ पे लिखा है public services. So what I did, rather than writing only public services, मैंने लिख दिया local amenities. So public services का थोड़ा सा मैंने पैराफ्रेजिंग कर दिया. उसको बोलेंगे आप, what I have written is, I have written local amenities. So I have paraphrased public services. और बाद में यहाँ पे लिखा है spending a visual art is a waste of money. तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे वेस्ट ऑफ मनी, तो यहाँ पे भी वेस्ट ऑफ मनी. उसके बदले आप अच्छा सा कोई वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज फाइन. सो व्हाट आई हैव डन इन सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन इज, आई हैव गिवन माय ओपिनियन. मैं ओपिनियन में ये कहता हूँ कि भले पब्लिक एम्यूनिटीज पे पैसा मतलब के पब्लिक सर्विसेज पे पैसा स्पेंड करना वो अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि विजुअल आर्ट्स पे पैसा खर्च करना वो वेस्टेज है, उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ. Is it getting clear? और बाद में the last line of the introduction, this essay will discuss this issue using examples to support arguments and demonstrate points. Now it is very important to understand कि ये जो लाइन है लास्ट, इसको आप मेमोराइज कर लो. ये ऐसी एक लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जो आप फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, हाँ, somebody has asked me question to extend topic, do we must write two opinion. हाँ, आप कह सकते हो, we can write, मैंने बोला था, when you write, whenever you are agreeing or disagreeing with any topic, आप उसको completely agree कर सकते हो, you can mostly agree कर सकते हो, you can completely disagree कर सकते हो. इस केस में मैंने क्या किया है कि I have I believe that I should invest in both of them, so that is fine, there is nothing to worry. Is it getting clear? Okay, so yeah, it's somewhat, you can say it's a partial thing. Yeah, now what I have done, आप सबसे important चीज, let us not forget, सबसे important चीज ये मत भूल जाइए, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए. ये लाइन को मेमोराइज कर लीजिए. देखिए ये लाइन ऐसी है जो सिर्फ ये ऐसे तक सीमित नहीं है. दिस इज द लाइन यू कैन यूटिलाइज इन नंबर ऑफ एसेस. देखिए,
This essay will discuss this issue using examples to support arguments and demonstrate points. What does it mean? It means that this is the line you can utilize in as any essay. Yes, visual arts वाला और public services वाला essay है, उसके लिए नहीं, काफी essays में इस्तेमाल हो सकता है. So I would recommend कि इस line को आप memorize कर लीजिए. This will be helpful to you in any essay that you write. Clear? Okay. Now let us go to the सेकंड पार्ट, आई मीन पैराग्राफ देखते हैं. सो व्हाट आई हैव डन, इंट्रोडक्शन हो गया आपका, सेंटेंस 1 पैराफ्रेज किया आपने, सेंटेंस 2 आपने अपना अभिप्राय दिया, एंड इन सेंटेंस 3 यू हैव गिवन एन ऐसे ओवरव्यू कि आप ऐसे में क्या करने वाले हो. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके, सो लेट अस गो टू द पैराग्राफ नंबर 1. पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ देखते हैं. सो क्या लिखा है ऊपर? The two supporting paragraphs should include your ideas and supporting examples to answer the task question. Aim to write only two supporting paragraphs with roughly 85 words in each. Each paragraph should contain the following 4 sentences and stick to one idea per paragraph. एक पैराग्राफ में अगर एग्री डिसएग्री वाला ऐसे है तो you should not be writing more than one for example idea. एक पैराग्राफ में 2 आइडिया हो जाएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड पैराग्राफ. कोहेशन और कोहेरेंस में बेंड्स गवा बैठोगे आप. तो आपने क्या किया, हमने क्या कहा था, डू नॉट फॉरगेट द ओपिनियन. हमने ये कहा था कि भले पैसे खर्च करना पब्लिक सर्विसेज पे वो जरूरी है, लेकिन विजुअल आर्ट्स पे पैसे स्पेंड करना इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ मनी. दैट इज व्हाट आवर ओपिनियन वाज. इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये पूरा ऐसे उसके ऊपर है. सो पहला, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको कैसे लिखा, स्टार्ट कैसे किया. वी हैव स्टार्टेड विथ द फर्स्ट ओपिनियन, मतलब ऑन द वन हैंड. ऑन द वन हैंड मतलब एक तरफ. तो दिस इज ऑल्सो अ कनेक्टिव यू कैन यूटिलाइज. कनेक्टिव तकरीबन एक ऐसे में 6 से 7 होने जरूरी है. ओवरयूज भी नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसने जबरदस्ती कनेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है. यू शुड बी राइटिंग 6 to 7 कनेक्टिव्स इन वन ऐसे. देखिए, ऑन द वन हैंड स्पेंडिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट. सिग्निफिकेंट मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब काफी मात्रा में. अगर 100% है तो 70-80% आप गवर्नमेंट बजट. सो यू कैन यूटिलाइज दिस. एक मिनट. Yeah, okay. So, on the one hand, spending a significant amount of the government budget on public services is beneficial for society. Beneficial for society मतलब अगर आप पब्लिक सर्विसेज पे, जैसे कि मैंने बताया था, पब्लिक सर्विसेज किसको कहेंगे, ब्रिजेस है, यू कैन टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल आई मीन रोड्स है, द इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स है, ये सारी पब्लिक सर्विसेज है. सो लिखा है ऑन द वन हैंड स्पेंडिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट ऑन पब्लिक सर्विसेज इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. अब देखिए, ये आपने कारण तो दे दिया, अब उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. वन ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड इज दैट यू डोंट नीड टू ओनली गिव एन ओपिनियन, यू नीड टू एक्सप्लेन. जैसे कि अगर आप कोई भी चीज लिखते हो तो अपने आप को पूछे, एक्सप्लेन वाई, मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि पब्लिक सर्विसेज पे खर्च करना ज्यादा अच्छा है, मतलब काफी स्पेंड करना अच्छा है. तो उसके लिए मैंने देखिए कारण दिया कि प्रोवाइडिंग, आप इसको स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज बिकॉज providing for basic amenities such as hospitals, roads and schools helps to determine the quality of life that most citizens will have. क्योंकि अगर अगर इन चीजों पे आपने खर्च किया तो उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी. सी आपको पता होगा, व्हेन यू टेल स्टूडेंट्स भी, आप क्यों जाना चाहते हो कनाडा, व्हाई यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाई यू वांट टू गो टू द यूएसए, सर वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है. आप देते जवाब ये है. सिर्फ पैसा कमाना, यही कारण नहीं होता बंदा वहां जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्योंकि यहाँ पे देखिए, पैसे वाला है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, जा सकता है. लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आपको वीएस या सिविल में भी जाना पड़ सकता है. तो यहाँ पे कैसा है कि आपकी फॉर एग्जांपल इनकम के हिसाब से यू आर बेसिकली प्रोवाइडेड द फैसिलिटीज. लेकिन अगर कहीं पे भी, अगर पब्लिक फैसिलिटीज पे अगर गवर्नमेंट ने अच्छा खर्च किया तो सब के सब लोग, एवरीबडी विल बी एबल टू गेट गुड फैसिलिटीज. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये कहना कि प्रोवाइडिंग फॉर बेसिक एमिनिटीज सच एज हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्कूल्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मोस्ट सिटीजंस विल हैव. अब उसका एग्जांपल, जब मैंने एक बार एग्जांपल, अब काफी लोगों को एग्जांपल समझ में नहीं आया होगा, या तो फिर एग्जांपल देना
वो they might not have a clue of how to give an example. If you don't know how to write an example, try to make an example. उसके लिए मैंने आपको बताया था कि you try to remember few organizations, जैसे कि WHO है, यूनिसेफ है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, काफी न्यूज़पेपर याद कर लीजिए। और क्या कीजिए, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक एन एग्जाम्पल, बिकॉज सारे के सारे ऐसे में आप एग्जाम्पल नहीं बना पाओगे, तो एग्जाम्पल आपको खुद कुकअप करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल, a recent survey by Education Today shows that country that spend more on schools have a population that is higher in literacy by 65% compared to those that dedicate no money to education. इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो सर्वे हुआ था एजुकेशन टुडे में, उसमें ये देखा गया है कि ऐसी कंट्रीज जो 65 पर मतलब जो पैसा खर्च करती है इन चीजों पे, जैसे कि इन चीजों में इन दिस केस एजुकेशन है, क्योंकि मैंने बताया था पब्लिक एम्यूनिटीज में सारी चीजें आ जाती है। यहाँ पे उदाहरण दिया है एजुकेशन का कि अगर shows that countries that spend more on schools have a population that is higher in literacy by 65% compared to those that dedicate no money to education. जो कंट्री स्कूल्स पे ज्यादा स्पेंड करती है उनकी पॉपुलेशन 65% ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। किसकी कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू दोस कंट्रीज जहां पे एजुकेशन पे मतलब के स्कूल पे खर्चा नहीं किया जाता। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव गिवन एन एग्जांपल। आपने एक एग्जांपल दिया जहां पे आपने बताया कि हाँ पब्लिक सर्विसेज पे स्पेंड करना ज्यादा अच्छा है, और बाद में हमने कंक्लूजन कर दिया देयरफॉर इट इज एपरेंट। एपरेंट मतलब it is understandable that spending on public services is a worthwhile investment for government. तो आपने क्या किया, आपने जो पैराग्राफ में लिखा है उसकी समरी दे दी। ये सेंटेंस लिखना न लिखना वो आपके ऊपर है, आप लिख सकते हो, बट देयर इज नो कंपल्सन। आई रिपीट, पहले स्टेटमेंट में हमने हमने उसका टॉपिक सेंटेंस दिया, बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, उसका कारण बताया क्यों ऐसा क्यों है, उसका एक एग्जांपल दिया, एंड फाइनली आई रोट अ समरी। इज इट गेटिंग क्लियर? दिस इज हाउ ऑल द पैराग्राफ्स ऑफ आईएलटीएस शुड बी रिटन। यही एक तरीका है जो आईएलटीएस के जिससे आप आईएलटीएस के पैराग्राफ लिख सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर द थर्ड पैराग्राफ। हम थर्ड पैराग्राफ करेंगे। तीसरा मतलब बॉडी पैराग्राफ 2, वैसे ऐसे का तीसरा पैराग्राफ, बट ओवरऑल इट इज बॉडी पैराग्राफ 2। यहाँ पे क्या लिखा है? आई एम गिविंग द सेकंड ओपिनियन। याद आ रहा है हमारा ओपिनियन क्या था? हमने ऐसा कहा था कि पब्लिक सर्विसेज पे स्पेंड करना तो अच्छा है ही, लेकिन मैं ऐसा कतई ही नहीं मानता दैट विजुअल आर्ट्स पे स्पेंड नहीं करना चाहिए, और हमने उसको बोला था। तो हमने दूसरे पैराग्राफ में क्या किया? व्हाट वी डिड इज दैट पब्लिक सर्विसेज पे स्पेंड करने का फायदा क्या है। तो जाहिर है यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई विजुअल आर्ट्स पे भी स्पेंड करना उससे भी फायदा है। तो लेट अस सी उससे उससे उसका क्या ओपिनियन है। हावेवर, हावेवर इसलिए लिखा इट्स ए कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टिव स्टूडेंट्स। ऊपर लिखा हावेवर का मतलब ये होता है कि आपने ऊपर के जो पैराग्राफ में लिखा है, अगर हावेवर से स्टार्ट करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के पैराग्राफ में जो है उसके विपरीत आपका आइडिया आने वाला है। काफी वर्ड्स है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड ओनली यूज हावेवर, you may utilize words like on the contrary, on the other hand, in spite of, despite, I mean alternatively, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें से आपने एक ले लिया however। however का मतलब आपका जो ऊपर का पैराग्राफ है उसके विपरीत इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो यहाँ पे लिखा है however this does not mean that the visual arts should be completely neglected। इसका मतलब ये नहीं कि विजुअल आर्ट्स को आप टोटली इग्नोर कर दो। निग्लेक्टेड के लिए काफी वर्ड्स है, इग्नोर, ओवरलुक्ड, ये सारे वर्ड्स आप निग्लेक्टेड के हिसाब से लिख सकते हो, मतलब वो सिनोनिम्स है उनके। सो ये यहाँ से मैंने शुरुआत ऐसे की, इसका मतलब कहते ही नहीं कि विजुअल आर्ट्स पे पैसा उसको टोटली इग्नोर किया जाए। अब उसका कारण बता रहा हूँ क्यों। कि मैंने लिखा है कि द विजुअल आर्ट्स ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि वो बहुत अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करती है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफी प्रभाव डालती है विजुअल आर्ट्स। अब ये कैसे? एग्जांपल दिया, तो मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय द WHO। ये देखिए, ये डर मत जाना, ये एग्जांपल देख के ये आप बना सकते हो। मैंने बताया था आपको कि आप एग्जांपल्स बना सकते हो, खुद बनाइए। अगर ये एग्जांपल नहीं होता मैं दूसरा देता,
पहले ये एग्जांपल पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, a recent study conducted by World Health Organization concluded that individuals that regularly visit art galleries are cited मतलब देखा गया है, as being 20% happier in life than people who do not. ये इसका मतलब ये हुआ कि ये देखा गया है, रिसेंट स्टडी की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उनने ये स्टडी करके ये कंक्लूड किया, ये तारण निकाला है, जो इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति बार बार रेगुलरली आर्ट गैलरीज विजिट करते हैं, वो अपनी लाइफ में 20% ज्यादा हैप्पी रहते हैं इन कंपैरिजन टू दोज पीपल हु डू नॉट अटेन दिस टाइप ऑफ गैलरीज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये बैकअप किया आइडिया को कि आर्ट गैलरी में भी पैसा खर्च करना चाहिए. तो उसके लिए हमने क्या किया, समराइज कर दिया. Seeing the health benefits that many people get from the visual arts, it is important that the government assist का मतलब होता है सपोर्ट करना, such institutions so that they continue to provide pleasure to the public. तो हमने ये क्या लिखा कंक्लूजन में कि ऊपर देखे गए जो हेल्थ बेनिफिट्स है, जिसमें ऐसा लिखा है कि 20% लोग 20% ज्यादा हैप्पी रह पाएंगे, इसको देखते हुए गवर्नमेंट को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट देना जरूरी है, ताकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक को प्लेजर दे पाए. यहाँ पे लिखा है ना, सो दैट दे कुड प्रोवाइड प्लेजर टू द पब्लिक. तो ये हो गया आपका तीसरा पैरा. अगेन, हाउ मेनी सेंटेंस आई हैव रिटन? 1 2 3 एंड 4. The fourth sentence is not compulsory. Again, if you want to ignore it, you can do it. लेकिन लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now let us try to understand. अब इसको देखते हैं. लास्ट पैरा. तो ये हो गया आपका कंक्लूजन. In conclusion, for the conclusion, aim to write just 1 or 2 sentences. सिर्फ एक या दो ही sentences लिखने हैं, और मैंने बताया था वैसे टोटल मिला के 45 वर्ड्स होने चाहिए. So be sure to start this sentence with an appropriate linking phrase. मैंने आपको बताया था कि appropriate linking phrase कौन से होने चाहिए. यहाँ पे भले to sum up लिखा है, लेकिन दो चीज याद रखिए. In conclusion या तो फिर to conclude. You can utilize these two keywords, in conclusion या तो फिर to conclude. These are very well concluding phrases for the conclusion statement, concluding paragraph. तो लिखा है to sum up, although there are, although से start किया मतलब although contrasting connective है, there are clear benefits of ensuring large amount of investment goes into public services. भले ये माना गया है, भले स्टार्ट कर रहा हूं मैं अल्दो से. अल्दो का मतलब होता है भले. गुजराती में कहते हैं इस आम पण, पर हिंदी में बोलते हैं भले. ये भले ही बहुत बेनिफिट्स है कि बहुत सारी मात्रा में पैसा जो है वो पब्लिक सर्विसेज में डाला जाए तो बहुत फायदे हैं, लेकिन लिखा है आई डू नॉट बिलीव स्पेंडिंग मनी ऑन द आर्ट इज अ वेस्ट ऑफ मनी एज दिस टू प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स. लेकिन ये कहना कि मनी आर्ट्स पे स्पेंड करना वो वेस्ट ऑफ मनी है, वो बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि उससे भी काफी फायदे हैं. सो हमने क्या किया, हमने ये लिख दिया, समराइज कर दिया. ये समराइज हमने यही किया जो हमने पहले पैराग्राफ, जो आपका ऐसे का पहला पैराग्राफ था, उसमें जो हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखा था उसी के हिसाब से लिखा है. तो फाइनली हमने क्या किया, लास्ट सेंटेंस ऑफ द एसे, गिव अ फाइनल थॉट, लिखा है इन द फ्यूचर गवर्नमेंट शुड कंसिडर बजटिंग फॉर बोथ. बोथ का मतलब भविष्य में गवर्नमेंट को दोनों की तरफ बजटिंग करना चाहिए. इज इट गेटिंग क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर एंटायर एसे स्टूडेंट्स. सो क्या हो गया आपका, वापस में जाना चाहूंगा. लेट मी पुट इट दिस वे, लेट अस हैव अ स्मॉल रिकैप. ये आपका पूरा फॉर्मेट है. द फर्स्ट इंट्रोडक्शन में 3 लाइन, बॉडी पैराग्राफ में 3 से 4 लाइन, अगेन वापस बॉडी पैराग्राफ में वापस 3 से 4 लाइन, फाइनली कंक्लूजन जिसमें समरी और फाइनल थॉट है. ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे मैं आपको उसका मैंने शायद आपको पासवर्ड जिसको नहीं दिया है तो मैं दे दूंगा, बट दोज हु आर हैविंग द पासवर्ड, ये सारी चीजें उस पे है. सो यू कैन रिफर दिस अगेन. आपको इसका वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर इसका कॉपी कहाँ मिलेगा. फिर ये ऐसे का टॉपिक था, ये हमने इंट्रोडक्शन लिखा. ये देखिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है फॉर एग्जांपल, ये मैंने बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट जो है, एक मिनट लेट मी, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कि अल्दो आई एग्री दैट इट इज इम्पोर्टेंट, यही चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज गोइंग टू गिव द एग्जामिनर माय व्यू पॉइंट. सो ये इसको टू व्हाट एक्सटेंट डू एग्री और डिसएग्री, और डिस्कस एंड गिव योर ओपिनियन वाले ऐसे में इसको मिस नहीं करना है.
उसके बाद बॉडी पैराग्राफ हमने लिखे, सपोर्टिंग बॉडी पैराग्राफ 1, supporting body paragraph 2, and finally the conclusion part. So this is how the entire essay has to be written. Okay, so what I shall do is just hold on.